Good morning, everyone. Our today speaker is Priya. Priya is also a student of HSPT pursuing diploma and in final year of computer engineering. She will conduct today's session on the topic Python, its framework, libraries, and how to do programming. So Priya, please take the control and further move on with the session. Yes, sir. There will be screen sharing. फिर अभी किसी और ने स्क्रीन शेयरिंग कर रखी है? No, you can share. You can share your screen. Yes, sir. Make it fully screen. 1 minute. Is it visible to all? Yes. Okay. So today our topic is Python programming language. So let's start. So this is the content that we should going to study in this PPT. What is Python? History of Python, its application, features, syntax, variable identifiers, keywords, data type, operators, and its libraries, framework, and how to install Python and its example. So let's continue. What is Python? Python is a popular programming language. It is a cross-platform programming language, which means that it can run on multiple platforms like Windows, Mac OS, and Linux. Python एक popular programming language है. ये multiple platforms पे run कर सकता है, जैसे कि Windows, Mac OS, Linux, इन सभी पे run कर सकता है. It is free and open source. आप इसे freely download कर सकते हो. इसका कोई cost नहीं लगता है. It is a simple, general purpose, high level and object oriented programming language. ये बहुत simple language है, general purpose के लिए भी use करते हैं और high level और object oriented programming language है. It is known as multi-purpose programming language because it can be used with web and 3D CAD etc. इसे multi-purpose programming language इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे काफी जगह use करते हैं, जैसे कि web, 3D CAD में भी और भी काफी जगह use करते हैं. History of Python. Python was invented by Guido van Rossum in 1991 at CWI in Netherlands. Python जो है Guido van Rossum नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट करा था 1991 में नीदरलैंड में. The idea of Python programming language has taken from the ABC programming language. We can say that ABC is a predecessor of Python language. जो आइडिया था Python language का वो ABC programming language से लिया था, जो कि हम ये भी कह सकते हैं कि ABC जो है Python language का पूर्वज था. There is also a fact behind choosing name Python. Guido van Rossum was a fan of the popular BBC comedy show of that time, Monty Python's Flying Circus. एक Python नेम चूज करने के लिए एक also एक फैक्ट भी है कि गाइडो वैन रोजम जो था वो उस टाइम पे पॉपुलर कॉमेडी शो था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस. तो वहां से उसने ये नाम जो है डिसाइड करा चूज करने के लिए अपनी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए. So now what Python is used for? It is used for artificial intelligence, machine learning, mobile application development, web development, video games, speech recognition, and also much more you can see in the image. That is education, software development, scientific and numeric, desktop GUI application, network programming, and much more. Features of Python. It is easy to use and learn, expressive language, easy code, object-oriented language, open source language, GUI program support, dynamically typed, wide range of libraries and frameworks, and code readability. Syntax of Python.
There is no use of curly braces or semicolon in Python programming language. As you all know about that कि हम curly braces और semicolon जो है Python language में use नहीं करते हैं. It is English like language. English की तरह ये simple language होती है. But Python use the indentation to define a block of code. लेकिन Python जो है indentation use करता है. Indentation जो है white space जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं हम indentation. जैसे कि for example है, हमने ये define function लगाया, statement 1, statement 2, फिर so on, ये statement n तक, इसमें हम indentation का use करते हैं. Python variables. Variable is a name that is used to refer to memory location. ये memory location को refer करता है. Python variable is also known as an identifier and used to hold value. Python variable को हम identifier भी बोलते हैं और ये value hold करने के लिए use किया जाता है. In Python, we don't need to specify the type of variable because Python is an infer language and smart enough to get variable type. Python जो है, जैसे पता है आप सबको, dynamically typed होता है. इसमें हमें जो है वेरिएबल की टाइप को डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर हमें कोई भी वैल्यू लेनी है तो हम सिंपल लिखते हैं. जैसे कि हमें x लेना है तो हम सिंपल x लिखते हैं. बट और सारी लैंग्वेज में हमें उसे डिफाइन करना पड़ता था, जैसे int x या फिर float y, ऐसे करके डिफाइन करना पड़ता है. बट इस लैंग्वेज में हमें नहीं करना पड़ता. वेरिएबल्स नेम कैन बी अ ग्रुप ऑफ बोथ द लेटर्स एंड डिजिट, बट दे हैव टू बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर. वेरिएबल जो है लेटर और डिजिट्स दोनों का ग्रुप से बनता है, लेकिन जो वेरिएबल का फर्स्ट वर्ड है वो लेटर या फिर अंडरस्कोर ही होना चाहिए, डिजिट नहीं हो सकता. इट इज रिकमेंडेड टू यूज लोअर केस लेटर्स फॉर द वेरिएबल नेम. हमें जो है लोअर केस लेटर्स जो है वेरिएबल नेम में यूज करना पड़ता है. जैसे कि इसमें अपर केस राहुल लिखा है एंड लोअर केस राहुल लिखा है, तो दोनों का में डिफरेंस है. जो लोअर केस वाला राहुल है वो वेरिएबल है. Identifier naming. A Python identifier is used to identify a variable, function, class, module or other object. तो Python identifier जो है एक वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वेरिएबल का वो हमेशा अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर ही होना चाहिए. All the characters except the first character may be an alphabet of lowercase, uppercase, underscore और digit. सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो लोअर केस भी हो सकते हैं, अपर केस भी, अंडरस्कोर भी और डिजिट्स भी हो सकती हैं. आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी व्हाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर. आइडेंटिफायर में जो है हम व्हाइट स्पेस और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करते हैं. आइडेंटिफायर नेम must not be similar to any keyword defined in the language. आइडेंटिफायर का हम नेम जो है किसी भी कीवर्ड पे नहीं रख सकते हैं. जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे डिफाइन, ग्लोबल, इफ, एल्स, ये सब हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं. पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये मैंने पहले बताया था कि केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसमें जो है जैसे माई नेम लोअर केस में और ये माई नेम अपर केस में, तो ये दोनों सेम नहीं है. ये कुछ एग्जाम्पल्स है वैलिड आइडेंटिफायर्स के और ये इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के. तो वैलिड आइडेंटिफायर्स जो है जैसे कि A123, कॉमा, अंडरस्कोर n_9, ये सारे जो है वैलिड आइडेंटिफायर्स है. लेकिन हमने जैसे इनवैलिड आइडेंटिफायर्स में डिजिट से स्टार्ट करा है तो 1 है पहले, तो ये जो है इनवैलिड है. हमने इसमें जैसे स्पेशल सिंबल का यूज किया तो ये भी इनवैलिड है. Python keywords. The Python keywords are special reserved words that convey special meaning to compiler and interpreter. Keywords के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा. ये reserved words होते हैं जो कि special meaning convey करते हैं compiler या interpreter को. Each keyword has a specific meaning and specific operation. हर keyword का एक अलग सा meaning और operation होता है. These variables can't be used as These keywords can't be used as a variable. ये keywords जो है variable की तरह use नहीं किया जा सकता है. There are total 33 keywords in Python which are shown in picture. Python में 33 keywords होते हैं जो कि पिक्चर में शो किए गए हैं. जैसे ये and, as, assert, false, finally, for, non-local, not, pass, ये सारे जो है Python के keywords हैं. Python data types. Data types are the classification or categorization of data items. Data types जो है वो data items का classification है. मतलब डेटा आइटम्स को हम डिवाइड करते हैं तो उसे डेटा टाइप्स कहते हैं. It represents the kind of value that tells what operations can be performed on particular data.
डेटा टाइप्स हमें बताता है कि किसी भी डाटा पे कौन सा ऑपरेशन जो है हमें परफॉर्म करना है। फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। ये सारे जो है डेटा टाइप्स है पाइथन के, न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप। Numeric is also divided into three types, that is integer, complex number and float. And sequence is also divided into three types, string, list and tuple. Numbers, तो numbers के बारे में सबको पता है, stores numeric values. There are three types of numbers, int, float और complex. int में जो है integer value store होती है. Integer value can be any length such as integers 10, 2, 29, -20, -50 etc. Python has no restriction on the length of an integer. It value belongs to int. मतलब Python में जो है int की length जो है मतलब कोई restriction नहीं है, आप कितने भी लंबी लिख सकते हो. Float is used to store floating point numbers like 1.9, 9.902 etc. It is accurate up to 15 decimal points. Float में जो है हम decimal numbers store करते हैं, इसमें जो है लेकिन decimal number का एक limit होता है जो कि 15 है. तो 15 डेसिमल पॉइंट्स तक ही हम उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स, a complex number contains an ordered pair that is x plus iy, where x and y denote the real and imaginary parts respectively. कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये इस पेयर पे स्टोर होते हैं, जैसे x plus iy है, इसमें x और y जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल जैसे ये है 2.14j, 2.0 plus 2.3j etc. Next data type है dictionary. Dictionary is an unordered set of a key value pairs of item. Dictionary जो है unordered set है key values का. Key can hold any primitive data type. ये primitive data type hold करता है key. Primitive data type हो गया जैसे आपने पढ़ा होगा ये int, boolean, float वगैरह, इन सबको primitive data types बोलते हैं. The items in the dictionary are separated with the comma and enclosed in the curly braces. जो dictionary में जो भी items हम store करते हैं वो comma से separate किया जाता है और curly braces से. Boolean के बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा. Boolean type provides two built-in values, true and false. These values are used to determine the given statement true or false. It denotes by the class bool. True can be represented by any non-zero value or t, whereas false can be represented by the 0 or f. Boolean जो है two built-in values provide करता है हमें true और false. ये values से हमें पता लगता है कि statement true है या false. ये जो है bool class के through represent किया जाता है. और true अगर हमें represent करना है तो वो non-zero value, मतलब जैसे कि 1 से, अगर true है आंसर तो 1 से represent करेगा, या फिर t से, अगर false है तो फिर 0 से या फिर f से represent करेगा. Next data type is set. Python set is the unordered collection of the data type. It is iterable, mutable and has a unique elements. Python set भी जो है वो unordered collection है data type का. ये iterable है यानी repeatable भी, repetition होता है इसमें, और mutable है means हम इसे creation के बाद भी modify कर सकते हैं, and has a unique elements. The set is created by using a built-in function set, और a sequence of elements is passed in the curly braces and separated by comma. Set को create करने का दो methods हैं. एक तो हम function set लगा के जो है set को create कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम curly braces लगा के उसमें commas की हेल्प से उसे separate करके भी create कर सकते हैं. Sequence type. Sequence types, there are three types of sequence type: string, list and tuple. String. The string can be defined as the sequence of characters represented in the quotation mark. In Python, we can use single, double or triple quotes to define a string. तो string जो है characters का sequence है. Python में हम single, double और triple ये तीनों quotes use करके string को define कर सकते हैं. List. The list can contain data of different types. The items stored in the list are separated with a comma and enclosed within a square brackets. जो list है वो डिफरेंट टाइप्स जो है डाटा के स्टोर करते हैं. तो आइटम्स इसमें स्टोर होते हैं, ये भी कॉमा की हेल्प से सेपरेट किए जाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है एनक्लोज किए जाते हैं. वी कैन यूज स्लाइस ऑपरेटर टू एक्सेस द डेटा ऑफ द लिस्ट. स्लाइस ऑपरेटर यानी जो कॉलन का सिंबल है, हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं लिस्ट से डेटा एक्सेस करने के लिए. Tuple is also similar to the list in many ways. Like list, tuple also contain the collection of items of different data types. Tuples भी जो है different
आइटम्स के डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करता है. द आइटम्स ऑफ द टपल आर सेपरेटेड विद कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद पैरेंथेसिस. यानी टपल में जो है हम आइटम्स कॉमा से सेपरेट करते हैं और पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट से हम इसे बंद करते हैं. Python operators. The operators can be defined as a symbol which is responsible for a particular operation between two operands. Python provides a variety of operators which are described below. जो ऑपरेटर है वो एक सिंबल होता है जो कि किसी भी टू ऑपरेंड्स के बीच ऑपरेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. Python provides a variety of operators which are described as follows. Python में ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप सबको पता होंगे जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड्यूलस एक्सपोनेंट एंड इसको फ्लोर डिवीजन का सिंबल बोलते हैं. और सेकंड है कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू. एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में भी है इक्वल टू प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू ये सब भी हैं. और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पता होंगे आपको एंड और नॉट. बिटवाइज ऑपरेटर में भी ये एंड का सिंबल है ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री जो हमने पढ़ा होगा रिवर्स कर देता है उसका सिंबल है. नहीं ये सॉरी ये एक्सॉर का सिंबल है ये कॉम्प्लीमेंट्री का सिंबल है और ये लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट का. और इसमें एक्चुअली स्क्रीन वो आगे आ गई. सो कि ये पाइथन लाइब्रेरीज. सो पाइथन लाइब्रेरीज इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो पाइथन लाइब्रेरीज में बहुत सारे होते हैं तो मैंने इसमें कुछ टॉप 10 पाइथन लाइब्रेरीज लिखे हैं. फर्स्ट है TensorFlow. दिस लाइब्रेरी वाज डेवलप्ड बाय गूगल इन कोलैबोरेशन विद ब्रेन टीम. ये लाइब्रेरी जो है गूगल के द्वारा डेवलप की गई है विद कोलैबोरेशन विद ब्रेन टीम के साथ कोलैबोरेट करके. TensorFlow जो है is almost a part of every Google application for machine learning. TensorFlow जो है almost हर machine learning का पार्ट होता है. TensorFlow works like a computational library for writing new algorithms. TensorFlow जो है कंप्यूटेशनल लाइब्रेरी की तरह वर्क करता है जिसमें हम न्यू एल्गोरिथम्स लिख सकते हैं. यू आर यूजिंग TensorFlow daily but indirectly with applications like Google Voice Search और Google Photos. TensorFlow हम अपनी डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं बट इनडायरेक्टली जैसे कि Google Voice Search और Google Photos में भी जो है TensorFlow लाइब्रेरी का यूज होता है. Skitlearn. सेकेंड लाइब्रेरी है Skitlearn. It is considered as one of the best library for working with complex data. हमें अगर complex data के साथ अगर work करना है तो ये सबसे best library है. It contains a numerous number of algorithms for implementing Hello. Your 1 voice. minute sir, 1 minute. 1 minute sir. तुमसे वो हैंग हो गया था. With backspace you can do. 1 minute sir. Visible to all? Yes. स्किटलर्न के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कॉम्प्लेक्स डाटा के साथ अगर हमें वर्क करना है तो ये बेस्ट लाइब्रेरीज है. इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो कि मशीन लर्निंग और डाटा माइनिंग टास्क के लिए काफी अच्छी है. जैसे कि हमें अगर रिड्यूसिंग डायमेंशनलिटी अगर डायमेंशंस रिड्यूस करना है या क्लासिफिकेशन करना है या मॉडल सिलेक्शन करना है तो इसके लिए जो ये बेस्ट लाइब्रेरी है. थर्ड लाइब्रेरी है NumPy. TensorFlow एंड अदर लाइब्रेरी यूजेस NumPy. TensorFlow and other library uses NumPy internally for performing multiple operations on Tensor. TensorFlow और काफी libraries जो है NumPy को use करती है multiple operations perform करने के लिए. NumPy जो है makes complex mathematical implementation very simple. Complex mathematical implementation को बहुत simple कर देती है. This interface can be utilized
for expressing images and sound waves. ये इंटरफेस जो है इमेज और साउंड वेव्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूटिलाइज की जाती है. फोर्थ लाइब्रेरी है pandas. Panda is a machine learning library in Python that provides data structure of high level and a wide variety of tools for analysis. Panda भी जो है machine learning library है Python में, जो कि हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है और काफी सारी वैरायटी ऑफ टूल्स जो है प्रोवाइड करते हैं एनालिसिस के लिए. वन ऑफ द ग्रेट फीचर ऑफ दिस लाइब्रेरी इज द एबिलिटी टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन विद डाटा यूजिंग 1 or 2 कमांड्स. इसमें हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को भी जो है 1 या 2 कमांड्स में जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं. Fifth library है PyTorch. PyTorch is the largest machine learning library. It is primarily developed by Facebook's artificial intelligence research group, and Uber's Pyro software for probabilistic programming is built on it. PyTorch जो ये भी largest machine learning library है. ये जो है Facebook artificial intelligence research group और Uber's Pyro software ने जो है मिलकर जो है डेवलप किया है, जो कि probabilistic programming के लिए यूज की जाती है. Sixth library है SciPy. SciPy is a machine learning library for application developers and engineers. SciPy जो है ये भी machine learning library है application developers के लिए और engineers के लिए. SciPy library contains modules for linear algebra, integration and statistics. SciPy भी जो है फाइल कंटेन करती है linear algebra के लिए, integration के लिए और statistics के लिए. मतलब मोस्टली मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के लिए भी ये यूज की जाती है. Matplotlib. Matplotlib is an amazing visualization library in Python for 2D plots of array. 2-dimensional plots of array करने के लिए उसको ड्रॉ करने के लिए हम Matplotlib का जो है यूज करते हैं. It can be used in Python scripts, shell, web application, servers and other graphical user interface toolkits. हम जो ऐसे Python scripts में भी यूज करते हैं, shell में भी, web application servers में भी और other graphical user interface toolkits में. 8th library है Seaborn. Seaborn is a library for making statistical graphics in Python. ये statistical graphics के लिए यूज की जाती है. It provides beautiful and default style and color palettes to make statistical plots more attractive. Statistical plots को more attractive बनाने के लिए इसमें काफी सारे styles होते हैं और color palettes होते हैं. It is built on the top of Matplotlib library and also closely integrated to the data structure from Pandas. ये जो है Matplotlib library के top में built होती है और ये इसके जो data structures हैं वो mostly Pandas से ही लिए गए हैं. Skit image. Skit image is a collection of algorithm for image processing. Skit image में जो है image process करने के लिए algorithms given होते हैं. It is available free of charge and free of restriction. ये जो है freely charges को कोई cost नहीं, आप easily download कर सकते हो उसे. It includes algorithms for segmentation, geometric transformation, analysis, filtering, morphology, फीचर डिटेक्शन एंड मच मोर. इसमें एल्गोरिथम्स यूज होते हैं जैसे सेगमेंटेशन के लिए, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, मॉर्फोलॉजी के लिए और भी काफी सारी चीजों के लिए इसमें एल्गोरिथम्स गिवन है. And last library is Keras. Keras is considered as one of the coolest machine learning library in Python. It provides an easier mechanism to express neural networks. Keras जो है काफी cool machine learning है Python में और ये जो है neural networks को express करने के लिए use किया जाता है. Keras also provides some of the best utilities for compiling models, processing datasets, visualization of graphs and much more. Keras जो है काफी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जैसे कि मॉडल को कंपाइल करने के लिए या फिर डेटा सेट्स हमें प्रोसेस करना है, फिर ग्राफ विजुअलाइज करना है और भी बहुत कुछ. Our next topic is Python framework. Framework is a collection of modules or packages which help in writing web applications or it helps in web development. Framework जो है मॉड्यूल और पैकेजेस का कलेक्शन है जो कि वेब एप्लीकेशंस और डेवलपमेंट में यूज होता है. इसके एडवांटेजेस है ये ओपन सोर्स है, गुड डॉक्यूमेंटेशन एंड सिक्योरिटी. टॉप 5 फ्रेमवर्क्स. फर्स्ट है Django. Django के बारे में आप सभी को पता है, आप सबने काम भी किया है इस पे. It is a free, open source and full stack Python framework which includes all necessary features by default.
ये जो है फ्री ओपन सोर्स है और इसमें पाइथन के फ्रेमवर्क्स बहुत सारे, इस पाइथन फ्रेमवर्क में काफी सारी नेसेसरी फीचर्स जो है पहले से ही इसमें इंक्लूडेड है. Django uses ORM to map objects to the database table. Django जो है ORM यूज करता है ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए और डेटाबेस टेबल्स के लिए. Some of the exemplary features of Django are authentication, URL routing, template engine and the ORM. इसके ये कुछ फीचर्स हैं: ऑथेंटिकेशन, URL routing, template engine and ORM. कुछ the main database that Django work with are PostgreSQL, MySQL, SQLite and Oracle. इसके जो है ये कुछ डेटाबेसेस हैं जिस पे Django वर्क करता है, जैसे कि ये PostgreSQL, MySQL, SQLite and Oracle. सेकेंड फ्रेमवर्क है Web2Py. It is a scalable, open source and full stack Python framework come with its own web based IDE. ये भी open source है और इसकी खुद की एक IDE है. It includes no requirement for installation and configuration. इसमें हमें इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के लिए जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऐसे भी चलता है. It has the ability to run on different platforms. ये भी different platforms पे रन कर सकता है and has the ability to multiple protocols. इसमें काफी सारे protocols, काफी सारे rule regulations भी हैं. It also provides us with data security and also has error tracking system. ये हमें data security भी provide करता है और इसमें error tracking system भी जो है जो error को track कर लेता है. Third framework है Flask. It is a micro framework. It is lightweight and it has modular design which makes it easily adaptable to developers' need. ये एक micro framework है, छोटा framework है, बहुत lightweight होता है और इसका modular design है जो कि easily adaptable है developers के लिए. Some of its features are fast debugger, RESTful request dispatching, built-in development servers, and it is also a Unicode based. Okay, so next framework is Bottle. It is also a micro framework. It is designed to be fast, simple and lightweight. ये भी micro framework है और काफी fast, simple और lightweight है. It is distributed as a single file module. There are no dependencies other than Python standard libraries. Very flexible and simple. काफी easy है ये वाली जो framework है किसी पे डिपेंड नहीं है, इसका अपना है और ये काफी फ्लेक्सिबल है और सिंपल है यूज करने के लिए. लास्ट फ्रेमवर्क है हमारा CherryPy. CherryPy is an open source. It is an object-oriented web application framework. It allows you to use any type of technology for templating, data access, and so on. ये भी open source है, object-oriented है और इसमें काफी सारी टेक्नोलॉजीज हैं templating के लिए और data access के लिए. The framework is mainly for the developers who want to create portable database-driven web application using Python. As it provides create, retrieve, update and delete functionality. ये फ्रेमवर्क जो है डेवलपर्स के लिए मेनली जो है डेटाबेस बनाने के लिए यूज होता है, जैसे कि हम इसमें डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और इसमें फंक्शंस वगैरह डिलीट भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टॉलिंग पाइथन. आप पाइथन इंस्टॉल कैसे कर सकते हो? जैसे विंडो के लिए आप python.org लिंक से जो है इसका लेटेस्ट वर्जन रिलीज कर सकते हो जो कि 3.8.6 है. और मैक के लिए आप ये लिंक इसमें गिवन है, इसके थ्रू जो है आप मैक के लिए भी Python 3 इंस्टॉल कर सकते हो और Ubuntu के लिए भी Python पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम जो आप सभी ने भी रन करके देखा होगा, इसमें सिंपली हमें प्रिंट लिखना है और स्मॉल ब्रैकेट्स में डबल कोट के साथ हेलो वर्ल्ड लिखना है जो कि हमें आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड. थैंक यू एवरीवन. If anyone has doubt then ask me. सर प्रैक्टिकल करके भी दिखाना है क्या? आपके पास थोड़ा टाइम है, यू कैन डू. तो कुछ प्रोग्राम्स में शो कर देते हैं जो मैंने दो तीन बनाया है. प्रोग्राम
Around 8 minutes are there. So हो रहा है शेयर? Your presentation screen is there. अभी और कुछ शो नहीं हुआ. एक बार डिस्कनेक्ट करके कर दो कनेक्ट. हाँ यस सर. अब हो रहा है सर? Yes. तो मैंने कुछ प्रोग्राम्स पहले से ही बना रखे हैं, मैं वो शो कर देती हूँ. जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए बनाया था, इसमें नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना दिखाया है. इसको मैं रन करके शो करती हूँ. सब प्रोग्राम शो हो रहा है? नहीं. नहीं हो रहा शो? नो यस सर हो तो रहा. ये प्रोग्राम नहीं है ना. नहीं हो. ये उसकी आउटपुट विंडो है शायद. न्यू फाइल तो नहीं हो रहा मतलब. एक मिनट, मैंने ओपन. You are using 2 screen or 1? यस सर. आप 2 स्क्रीन यूज कर रहे हो, एक कर रहे हो? लैपटॉप ओनली. सर 2 यूज कर रही हूँ सर. एक्चुअली पीसी का जो है थोड़ा माइक में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं माइक जो है फोन का यूज कर रही हूँ. तो ये लैपटॉप में तो शो हो रहा है, बट ये पता नहीं इसमें क्यों नहीं शो हो रहा. यार इसको एक मिनट, इसे स्टॉप कर देना. शो हो रहा है? हाँ, हो रहा है. यस. तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम है, सिंपल सा. इसमें नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके शो किया है. मैं एक मिनट रन करके शो करती हूँ. पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, शो ही नहीं हो रहा है. लाइन बाय लाइन प्रोग्राम मैं बता दूसरे दो. सेशन में आप एक बार लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम बता दो आपने क्या बनाया है. रन हो जाएगा, आप मान लेते हैं. नो इशू. ओके सर. प्रोग्राम हमें दिख रहा है आपका. पता नहीं सर, वो रन वाला कंसोल विंडो नहीं शो हो रहा है. इसमें हमने num1 और num2 स्टोर करवाया है, इसलिए हमने इनपुट फंक्शन यूज करा है. इनपुट फंक्शन के लिए क्या है कि हम जब इसको रन करेंगे तो हम उसमें उस टाइम पे इनपुट दे सकेंगे कि हमें जो नंबर देना है. जैसे इनपुट में हमने एंटर फर्स्ट नंबर एंड एंटर सेकंड नंबर. फिर ये है कि ऐड टू नंबर्स ऐड करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, सम इक्वल टू फ्लोट num1 प्लस फ्लोट num2. हम फ्लोट इसलिए लगाते हैं क्योंकि काफी बार जो है आंसर्स जो है वो डेसिमल में भी आते हैं, तो हमने फ्लोट लगा दिया तो इससे इजीली प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स के लिए min इक्वल टू फ्लोट num1 माइनस फ्लोट num2. मल्टीप्लाई के लिए हमने स्टेटमेंट लिख दिया, मल इक्वल टू फ्लोट num1 इंटू में फ्लोट num2. डिवाइड करने के लिए जो है यही फ्लोट num1 डिवाइडेड बाय फ्लोट num2. उसके बाद सम को डिस्प्ले करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है, सम ऑफ 0 and 1
इस 2, इसका ये फॉर्मेट है तो हमें यही लिखना पड़ता है, फॉर्मेट num1 num2 कॉमा सम। उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए हमने प्रिंट करवाया था सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 एंड 1 इज 2। इसका भी फॉर्मेट सेम ही रहेगा, num1 num2 एंड माइन। फिर सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। उसके बाद ये पता नहीं सर ये रन नहीं हो रहा है। नो इशू, यू परफेक्टली मैनेज एवरीथिंग। आपकी प्रेजेंटेशन का टाइमिंग भी बहुत आपने सही से यूज करा और उसमें आपने दिया है सारी चीजें। एवरीथिंग इज परफेक्ट। ये फिर किसी और सेशन में वी विल कंटिन्यू। ओके सर। Okay. So any question if anyone want to ask can. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। इन्होंने जितनी चीजें शेयर करी हैं उसमें से कोई डाउट आ रहा हो थोड़ा। नो डाउट, कोई नहीं पूछना चाह रहा। हेलो, ओके प्रिया, देन थैंक यू। नो वन इज asking. That's it. Thank you for joining. Thank you for attending, presenting this perfect. सर सर मेरे को ही दोबारा बता दो, एक्चुअली मेरा नेट ऑफ बंद हो गया तो मैं दोबारा से क्लास अभी एंटर करी है, बीच में से चली गई थी। अब आपको अगर बाद में वीडियो परफेक्ट होगा तो आपको मिल जाएगा। लास्ट का बस जो अभी ये ऐड टू नंबर्स वाला था ना, ये समझना था। ओके, तो इन्होंने ये प्रोग्राम देख रहा है, इन्होंने इसमें समझाया है। प्रिया, यू विल आंसर और यस सर। हाँ जी, इनको कर सकते हो आप। इस प्रोग्राम में जैसे कि हमने सबसे पहले ये 2 नंबर्स को जो है स्टोर करवाया है, num1 और num2। इसमें हमने इनपुट फंक्शन का यूज कराया है। इनपुट फंक्शन यूज करने के लिए जब हम इसको रन करेंगे तब इसमें आउटपुट स्क्रीन में जो है हम नंबर्स इनपुट करवा पाएंगे अपनी तरफ से। उसके बाद फिर ये 2 नंबर्स ऐड करने के लिए ये स्टेटमेंट हमने लिखी है, सम इक्वल टू फ्लोट num1 प्लस फ्लोट num2। तो इसमें फ्लोट क्यों लगाया है? फ्लोट लगाया है इसलिए ताकि कभी अगर हमारा आउटपुट जो है अगर डेसिमल में आए तो इसमें कोई एरर शो ना हो और कोई दिक्कत ना हो प्रोग्राम में, तो इसलिए हमने फ्लोट लगा दिया है। इंट भी तो लगा सकते हैं ना? इंट लगा सकते हैं मतलब, लेकिन इंट लगाने के लिए क्या है ना, फिर अगर आंसर हमारा डेसिमल में आ रहा है तो फिर वो शो नहीं करेगा डेसिमल वाला। डबल फ्लोट यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पे फ्लोट की जगह? क्या डबल फ्लोट? डबल फ्लोट भी आई थिंक कर सकते हैं, बट अगर फ्लोट से काम चल रहा है तो फिर डबल फ्लोट क्यों यूज करना। बट देयर इज अ फंक्शन डबल फ्लोट, बट वो किस लिए अगर फ्लोट यूज कर सकते हैं तो उसका भी तो कोई काम होगा ना। if you have to enter if you have to store number more than 15 decimal points then you have to use double float function। और तो इसीलिए तो मैंने बोला अगर यहाँ डबल फ्लोट